Good morning, student. I'm Kirti Sharma from Kalpana Chawla Vidyapit School. So we are going through with the chapter number 7 of Begum Hazrat Mahal. So now let's start. Earlier we have read that Hazrat Mahal ने अपना बेटे को हायर को उसे नवाब बना दिया एंड अपना रेजिडेंट की पोस्ट ले ली, रेजिडेंट का टाइटल ले लिया. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड we have to start from here. Hazrat Mahal discarded her parda and took control of the state and army. She restored the rights of the talukdar and returned their villages and changed their unfair rules made by the British. She called a meeting of her army chiefs, wazirs and courtiers, planned battle strategies. Such meetings were held every day now. In this paragraph it is said that कि उसने अपना जो भी घूंघट में वो रहना चाहते, जो लेडीज़ और क्वींस थी जिनका रिचुअल था घूंघट में रहना या पीछे रहना पर्दे के पीछे, ना उसने वो सब डिस्कार्ड किया. उसने हटा कर सामने आई एंड सभी वज़ीर और अपने पूरे कॉर्टियर्स को अपना बुलाकर उसने मीटिंग प्लान की, स्ट्रेटजीज प्लानिंग की. Her soldiers soon attacked the residency at Lucknow, attempting to blow it up. Hundreds were killed, but the British beat them back. In nearby Kanpur, two fierce battles were fought. There were two sepoys led by Nana Sahib were defeated by the British. The Begum's troops once again surrounded the Lucknow residency. Gain entry. But the British under the general outcome, General Havelock, approached fast and soon reached Alamgarh, just 5 miles away from Lucknow. तो इन दिस पैराग्राफ इट इज़ सेड दैट कि जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने रेजिडेंसी पर अटैक करने का प्लान किया. पहले अटैक में उनके भी काफ़ी लोग मर गए थे, हंड्रेड्स वर किल्ड, और एंड में लेकिन इतनी बैटल के बाद भी वो हार गए. जो ब्रिटिशर्स थे उन पे ओवर पावर्ड हो गए एंड नाना साहेब जो कानपुर में लड़ रहे थे उन्होंने भी हार गए ब्रिटिशर्स से. द बेगम ट्रूप्स वंस अगेन, उन्होंने दोबारा ट्राई किया बेगम के ट्रूप ने, बट एंड में जब वो वहाँ पर रेजिडेंसी के पास जा रहे थे जहाँ पर ऑफिसर्स ने अपनी फैमिलीज़ को रखा था, वहाँ पर जा रहे थे उससे पहले ही ब्रिटिशर्स आलमगढ़ पर हमला करने के लिए आ गए. आलमगढ़ जो लखनऊ के पास था, जिससे लखनऊ को सीधा इफ़ेक्ट था, उनका ही पार्ट था लखनऊ में, एंड वो उस पर आलमगढ़ पर हमला करने आ गए. Which is why Begum was forced to leave Lucknow to defend Alamgarh. Determined to fight till her last breath, she mounted her elephant and rode the street in the midst of firing and clashing of swords, exhorting her soldiers to fight on. The battles lasted 3 days, but at the end, in 23rd September, the British captured Alamgarh. तो उसे जो बेगम है उसे वापस आना पड़ा फाइटिंग, मतलब रेजिडेंसी पे जाने से पहले उसे आलमगढ़ को बचाने के लिए वापस आना पड़ा एंड उसने वॉर में जाकर खुद ही फाइट की एलिफेंट पर. एंड लेकिन एंड में जो ब्रिटिशर्स ने आलमगढ़ को भी कैप्चर कर लिया. ब्रिटिश ट्रूप्स नाउ मार्च थ्रू द लखनऊ टू रेस्क्यू द ऑफिसर, देयर फैमिलीज इन द रेजिडेंसी. दे मेट विद द फेयर रेजिस्टेंस. देयर वर क्लैशेस इन एवरी स्ट्रीट ऑफ लखनऊ. व्हेन दे डिड रीच themselves surrounded by the rebels, they were trapped inside, imprisoned in their own shelter. अब जैसे ही ब्रिटिशर्स जीत कर या जैसे अपने वापस लखनऊ में जाने लगे एंड अपने रेजिडेंसी में जाने लगे, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनकी रेजिडेंसी में रेबल्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं और उनको कैद करके रख दिया है. ब्रिटिशर्स अपने ही ओन शेल्टर में कैद होकर रह गए थे. लखनऊ became the rally point of 1,000 soldiers who began to gathering their joint battle. Greatly alarmed, the British in Calcutta dispatched Sir Silent Cromwell with the 5,000 soldiers to help their fellow men stranded inside the residency. तो अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अलार्म हो गए थे कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने सर कॉलिन कैम्बल को बुलाया एंड उनको 5,000 सोल्जर्स के साथ बुलाया कि वो फाइट करेंगे. The rebels continued to fight and encouraged Begum Hazrat Mahal and commanders ordered her soldier to modify Kesar Bag and put strong barricades on every street. Every house in Lucknow participated in the battle. As before, Hazrat Mahal led from the front seat. बैटल बहुत लंबा चला, सब अपना फाइट कर रहे थे. बेगम आगे थी तो इसलिए सभी सोल्जर्स को अब मोटिवेटेड थे, कमांडर्स भी थे, तो इसी वजह से अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या प्लान किया कि केसर बाग जहाँ पर क्वींस रह रही थी और जहाँ पर अभी तक उनकी लिविंग कर रहे थे, तो अब उन पर अटैक करने का प्लान किया गया. तो हर बेगम ने इन्फो दिया था, सबको बोला था कि प्लीज़ आप लोग अपना इस महल को, पैलेस को सेव रखो. But the British finally occupied Kesar Bagh. The British army tortured
जो बेगम थी उसने बहुत फाइट किया बचाने का केसर बाग को, बट एट द एंड ब्रिटिशर्स ने केसर बाग को भी टॉर्चर एंड किल मैनी सिटीजन्स एंड प्लॉटेड द डिस्ट्रॉयड ग्रैंड सिटी ऑफ लखनऊ। ब्रिटिशर्स ने बहुत लोगों को मार दिया एंड काफ़ी लोगों पूरी सिटी को बर्बाद भी करके रख दिया। द बेगम वॉज फोर्स्ड टू फ्ली Bitali, small village near Lucknow. There were Raja Konda offered her to place to stay. She kept her attacks and camped with a lightning speed and cutting of their supplies together with their supporters Mullah Abdullah and Bani Raja. And Begum made a last ditch attempt. ditch attempt mean उसने लास्ट अटैम्प्ट किया दोबारा से हमला करने का ब्रिटिशर्स पर और लखनऊ को पाने का, बट was repulsed once again and become retreated further and Bondi fought, from where army continued to battle for 8 months. They were now being attacked from the both sides. अब जो बेगम थी, जैसे ही लखनऊ पूरा शहर बर्बाद हो चुका था तो बेगम को भागना पड़ा और वो वहाँ पर बितौली विलेज में जाकर, छोटे से विलेज में जाकर रहने लगी। वहीं से उन्होंने सारी स्ट्रैटेजीज दोबारा प्लान की। फिर उन्होंने लास्ट अटैम्प्ट किया, लेकिन लास्ट अटैम्प्ट भी उनका बेकार गया। ब्रिटिशर्स उनसे नहीं वो हरा पाई एंड सारी जगह से दे वर अटैकिंग द जो लखनऊ और जो अवध के सोल्जर्स हैं उन पर अटैक हो रहा था बोथ साइड से, एंड विच इज़ वाई उन्होंने अपना 8 मंथ्स जो उनकी फ़ाइट थी वॉर चली, बट एट द एंड ब्रिटिशर्स वो ब्रिटिशर्स को डिफीट नहीं कर पाए। सो वी विल एंड ओवर हेयर and we will continue from the next lecture.